آپ کو بتائیں کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حتمی نتائج CT21 کو موصول ہو گئے۔ عامر نواز وڑائچ 2737 ووٹ لے کر صدر اور نصراللہ جلبانی 2257 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب۔ اختیار علی چنا 1687 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری، جبکہ جہانزیب مری 1893 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری بن گئے۔ راحیل سمسام 1879 ووٹ لے کر خزانچی کے عہدے پر کامیاب۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حتمی نتائج CT21 کو موصول ہو گئے۔ عامر نواز وڑائچ 2737 ووٹ لے کر صدر اور نصراللہ جلبانی 2257 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب۔ اختیار علی چنا 1687 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری، جبکہ جہانزیب مری 1893 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری بن گئے۔ تفصیلات جانیں گے، جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حتمی نتائج CT21 کو موصول ہو گئے ہیں۔ دن بھر پولنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد اب الیکشن کمشنر DJ جنوبی جاوید احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، جس کے مطابق صدر کی نشست پر عامر نواز وڑائچ 2737 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ نصراللہ جلبانی 2257 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہوئے۔ اختیار علی چنا 1687 ووٹوں کے ساتھ سر فہرست رہ کر جنرل سیکرٹری بن چکے ہیں، جبکہ جہانزیب مری 1893 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری پر منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ راحیل سمسام 1879 ووٹ کے ساتھ خزانچی کے عہدے پر کامیاب ہوئے، جبکہ شیخ کاشف امجد 1503 ووٹ لے کر لائبریرین بن گئے۔ جبکہ جو مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں میں تھی، ان کے 48 امیدوار مد مقابل تھے، ان میں سے بھی 11 کامیاب ہوئے، جس میں سر فہرست ایاز سولنگی 1670 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ عدنان فاروق نے 1584 ووٹ حاصل کیے، کامیاب ہوئے۔ عبدالفہیم 1567 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ عبدالقادر سومرو نے 1543 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح فوزیہ فتح، ظفر بلوچ، زاہد حسین، حسینہ تبسم، عبدالمالک محمد اسلم اور طاہر محمود جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں 11 نشستوں پر، اور یوں اب یہ نئی کابینہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس کے صدر عامر نواز وڑائچ ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جواد آصف آپ کا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کا کہنا ہے کہ انتخابات کے صاف، شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ انتخابات کا شیڈول جاری ہو چکا، پورا ملک انتخابات کی تیاری میں مصروف ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کی کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت سے ملاقات انتخابات کے پرامن، شفاف و شفاف اور منصفانہ انعقاد کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ کمشنر کراچی نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ سندھ میں تعیناتی سے قبل وہ بلوچستان میں تعینات تھے۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ الیکشن کمیشن سندھ کے تمام دفاتر میں ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے نئے جاری ہونے والے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اب ہفتہ اور اتوار کو بھی تمام دفاتر کھلے رہیں گے۔ عام انتخابات کے تمام مراحل مکمل ہونے تک ملازمین و افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد MQM نے چیف الیکشن کمشنر سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ علی اصغر سیال کی تبدیلی کا مطالبہ کرے گی۔ MQM کا وفد جلد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق MQM کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے الیکشن کمیشن ممبر نثار دورانی کے صوبے کے انتخابات میں عمل دخل نہ ہونے سے متعلق تحفظات بھی رکھے جائیں گے۔ MQM کے مطالبے پر گزشتہ دنوں الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کا تبادلہ کیا جا چکا۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے لیے کمر کس لی۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ دہرا دیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ 27 دسمبر کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر لاڑکانہ میں عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ شعیب مختار رپورٹ کریں گے۔
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात की राह हमवार, सियासी जमातों ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। पीपल्स पार्टी का लाड़काना से मुहिम का आगाज का फैसला। लावल हाउस में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर इंतखाबात में लेवल प्लानिंग फील्ड देने का मुतालबा दोहरा दिया। शीरी रहमान का कहना था कि अफसोस है कुछ तंजीमें इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ताखीरी हरबे अपना रही हैं। 27 दिसंबर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। जब सारी तंजीमें या तो चुप थी या कोई अभाम इस सिचुएशन में लाना चाहती थी या राय फरार ढूंढ रही थी इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी मैदान में है। आपने देखा चेयरमैन की कन्वेंशन शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी 27 दिसंबर को फैसला हुआ है बीबी शहीद की बरसी पर, वहाँ गड़ी खुदा बख्श से ये कैंपेन का इनेकाद होगा और चेयरमैन बिलावल उसको वहाँ से शुरू करेंगे। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। बोले जो दुनिया को जेल में भेज रहा था आज खुद जेल में पड़ा है। जो मावी की नफरत की इल्जाम तराशी की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की सियासत, या जो इंतकाम की सियासत है, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को आप अभी भी देख रहे हैं कि उनके बयानात में, उनके इंटरव्यूज में इंतकाम आ रहा है कि जी मेरे साथ जिसने ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या एक जो पहले था जिसने कहा कि मैं सारी दुनिया को जेल में भेजूंगा वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इजलास बुलाया। तमाम लोग इस हाइब्रिड मीटिंग के अंदर मौजूद थे, बल्कि बलूचिस्तान के साथ ही यहाँ पर भी आए हुए थे। तो ये सीरियसनेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर पैगाम देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए, इस जमहूरी अमल को मजबूत बनाइए, हमारा इंतखाब कीजिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि मजलूम किसानों के साथ खड़े हैं, ज़राअत हमारी लाइफलाइन है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स की खिदमात के एजाज़ में तकरीब। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज ने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स दूर दराज इलाकों में ख़वातीन की सेहत के लिए गिरां कदर खदमात पेश कर रही हैं। मुनशियात की रोकथाम के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर पैगाम पहुँचाकर बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद कायम खानी। बिल्कुल जी, एक ऐसे इवेंट में मौजूद है जहां पर ऐसे तबके की हौसला अफजाई की गई है और वो भी वजारत सेहत यानी कि सिंध की जानिब से की गई है। अच्छा सा बताएगा, एक तो इस इवेंट के हवाले से बताएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इवेंट का जो एक्चुअली सेहरा तो वो तो डॉक्टर फरहाना मेमन को जाता है जो पीडी हैं इसकी, लेकिन ये लेडी हेल्थ वर्कर और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारे जो हेल्थ सिस्टम की एक बैकबोन है। और जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, जिस मेहनत से और जिस जज्बे के साथ काम करते हैं, उस जज्बे को देख के जो है ना, मैं इनसे यही कह रहा था कि आपके जज्बे को देख के एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक जिसको कहते हैं ना, इस अंधेरी जो हमारी आजकल की जो बिल्कुल नेगेटिव पूरा सिस्टम है उसके अंदर रोशनी नज़र आती है। तो ये एक बेसिकली इनको यहाँ बुलाना, ज़ाहिर है इनके जो ये काम करते हैं उसका तो हम रिवॉर्ड नहीं दे सकते, लेकिन ये एक सिर्फ अप्रिसिएशन था, इनको ये बताना था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। वो तमाम चीज़ें इनके लिए करी जाएंगी, इसलिए कि वो ऐसे इलाके में लोग काम करती हैं जहाँ से डॉक्टर्स के पास जो है ख़वातीन जाती नहीं हैं। उन मसाइल को ये लोग एड्रेस भी करती हैं और उनके मसाइल भी करती हैं। ड्रग के हवाले से जो आपने बात की और एक प्रोग्राम भी किया था, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस तवस्सुत से भी लेडी हेल्थ वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज गुटखा और ये जो पान का मामला है और इसी तरह ड्रग्स का जो मामला है, क्योंकि इनकी जो है ना वो पेनिट्रेशन है कम्युनिटी में, तो इनके ज़रिए हम घर घर पैगाम पहुंचा सकते हैं बहुत इफ़ेक्टिवली। तो मैंने आज ही इन लोगों से बात की, मैंने कहा आप लोगों को पर इतना पहले ही लादा हुआ है, एक लीफलेट में शायद हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला है हम सब के लिए। जो ये नशा वाला मामला है इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है काम करना। और मैंने एक और रिक्वेस्ट की है कि मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो मॉर्निंग शो होता है उसके अंदर जो है ना हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो यहाँ पे उन्होंने बातें की हैं लोगों को बताएं कि ये क्या करते हैं। तो एक मॉर्निंग शो जो है ना, चाहे आपके चैनल से हो,
चाहे आपके तवस्सुत से किसी और चैनल से, इनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, इनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और जो मसाइल हैं उन्हें यही उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो यही है, इस तरह के अहम सेमिनार्स और मॉर्निंग शोज। और जैसे बात की उन्होंने कि ये वही तबका है हेल्थ वर्कर जो घर घर जा सकता है और तमाम तर जो न सिर्फ जो है वो जचकी के मामलात को देख सकता है बल्कि इनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी और इसके साथ साथ मंशियात को कंट्रोल करने के लिए घर से जो है वो आगाही की ज़रूरत हो, घर तक जाने में यही किरदार अदा करेंगे और इनकी कोशिशों के साथ जल्द जो है इनका कहना है कि मंशियात की रोकथाम के हवाले से जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं और जल्द जो इस पर इक़दाम करते हुए इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। जी, शहरियों की मोहब्बत समेटे बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का तीसरा रोज़ इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। रात के इस पहर भी कुतुब बीनी के शौकीन एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद। हफ्ते की रात फैमिलीज़ के हमरा शहरी ख़रीदारी में मगन। कुतुब मेले के कन्वीनर वकार मतीन कहते हैं कि सिंध के दीगर शहरों में भी जल्द कुतुब मेला सजेगा। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और आज क्योंकि हफ्ते का रोज़ है तो 18वें बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले में यकीनन अवामुन्नास की आमद-ओ-रफ्त का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी व सारी है और यहाँ पर शहरियों का एक जम गफ़ीर जो है हमें देखने को नज़र आता है। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और एक्सपो सेंटर कराची के हॉल नंबर 1, 2, 3 तीनों जो है खचाखच यहाँ पर भरे हुए हैं। इस कुतुब मेले के कन्वीनर इस वक्त मेरे साथ वकार मतीन साहब मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। हर साल कराची के शहरियों के लिए आप एक तोहफा लेकर आते हैं, बड़ी खूबसूरत किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, एक मेला सजा हुआ है, क्या कहेंगे आपके इस मेले ने तो कराची की रौनक दुबाला कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने ख़ुद का रौनक बहाल हो गई। ये 18वां साल है और जिस तरीके से साल बढ़ते जा रहे हैं, 2005 में शुरू किया था, पहले एक हॉल में था, अभी 3 हॉल्स में हो गया और स्टॉल की तादाद 100 थी, मसला 330 हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के शहरियों का एक मुतालबा था कि जी इसके दिन बढ़ाए जाएँ, हॉल बढ़ाए जाएँ। अंदरून सिंध में प्लान हमारा है कि हम यहाँ से इसको हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना इन 3 बड़े शहरों में लेके जाएं। उसके लिए बातचीत हमारी हो रही है और देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे कि हम तीनों शहरों में 5 दिन का ना सही मगर 3-3 दिन का हमारा प्लान है कि हम करें। कि छोटे शहर हैं तो आबादी के हिसाब से हम 3-3 दिन करेंगे। कराची आबादी ज़्यादा 3 करोड़ की है तो 5 दिन भी कम पड़ते हैं, मगर हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में प्लान है कि 3 दिन काम करें। प्लान है कि सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी ये कुतुब मेले का जो है इनकाद किया जाए। यकीनन शहरियों का एक एतमाद है कराची बुक फेयर के ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। 2005 से लेकर आज तक यहाँ पर जो है हमेशा से ही जब जब कुतुब मेला एक्सपो सेंटर कराची में सजा है तो शहरी अपनी मन पसंदीदा किताब की तलाश में यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और यकीनन इस वक्त भी रात का ये पहर है लेकिन शहरियों की जो आमद का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी व सारी है। जी, कराची में पार्किंग माफिया शहरियों से गैर कानूनी तरीके से पैसे बटोरने लगी। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद मार्केटों के बाहर पार्किंग माफिया सरगर्म। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम, कोई इलाका छोड़ा न बाजार। शहर का अहम तरीन मुकाम तारिक रोड भी पार्किंग माफिया के निशाने पर आ गया। जगह जगह पार्किंग से शाहराहों पर ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन ने शिकवा किया कि गैर कानूनी पार्किंग कई बार खत्म कराई मगर पार्किंग माफिया दोबारा काम शुरू कर देती है। पीछे नाजायज पार्किंग लगी, फुटपाथ पे लगी। कल मैंने खुद ने पार्किंग एसओ से साफ करवाई है, सो आज फिर लगी हुई है पार्किंग। ये सब मिलकर पैसे खा रहे हैं। कोई भी ऐसे आदमी नहीं है, इनको ये खुद कहते हैं, ठेकेदार खुद कहते हैं कि हम 3-3 हज़ार रुपये बाइक के पैसे, रोज़ के पैसे हम देते हैं यहाँ पे। जो खुद ठेकेदार खुद कहता है, हमने इनको बुलाया। ये मतलब है डबल 3-3 पार्किंग गलत खड़ी करी हो, गली गली कूचो कूचो में नाजायज पार्किंग करी हो, नाजायज पथारे लगे में। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के जनरल सेक्रेटरी असलम उन्नर बोले, माफिया मोटरसाइकिल और कार पार्किंग के जायद पैसे वसूल कर रही है। पार्किंग की जो पर्ची है उस पे 10 रुपये लिखे हुए, 30 से 50 रुपये ले रहे हैं। गाड़ी वाले से ये ज़बरदस्ती 100 रुपये ले रहे हैं। डबल पार्किंग लगी हुई है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। इनसे हम कहते हैं, एसओ साहब से, ट्रैफिक एहलकारों से कहते हैं, अमजद साहब आए, डीएसपी आए, एसओ साहब आके कहते हैं जी हमारे पास नफरी नहीं है। नफरी नहीं है तो भाई आप ये चलते फिरते, एसओ साहब ने ठेले वालों की एफआईआर कटवाई, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं आप पकड़ के एफआईआर कटवाते हैं? इस पर हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? तारिक रोड ट्रेडर्स के ओहदेदारों ने डीआईजी ट्रैफिक से अपील की है कि मामले पर फौरी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21।
मेयर कराची की लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर वज़ीर आला ने कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में कराची के ट्रैफिक मसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के हवाले से इजलास हुआ। मेयर कराची की जानिब से लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर कमेटी कायम कर दी गई। मेयर कराची ने बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे के बारे में कंसल्टेंट ने कहा है कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए बना है। इस हवाले से वज़ीर आला ने कमेटी कायम कर दी, जिसमें मेयर कराची, आईजी पुलिस, केडीए और NHA के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी 7 दिनों में तयन करेगी कि लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए काबिल है या नहीं। घर के कागजात हों या ज़मीन की मुंतकली का मसला, बस सब कुछ एक क्लिक पर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटल प्लेटफॉर्म की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। डिजिटलाइजेशन का दौर, महकमों का जदीद टेक्नोलॉजी के अपनाने का अज़म, एक और डिपार्टमेंट डिजिटलाइज कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान में सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में निगरान वजीर का कहना था कि डिजिटलाइजेशन पर 12 साल से काम जारी था। मेरी खुशकिस्मती है मेरे दौर में ये काम मुकम्मल हुआ और बहुत जल्द अलॉटमेंट की पॉलिसी भी लेके आएंगे। पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी का कहना था ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड का अमीन है, मगर माजी में यहाँ बहुत घपले किए गए। तकरीब के आखिर में आबाद की जानिब से निगरान वजीर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अयाज राना, सिटी 21।